how do you use these tools is way more important than just trying to derive our answers. You can genuinely become very, very intelligent. There are a lot of talent who are learning Power BI, जो सीख रहे हैं, और वो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि maybe Excel, CSV, SQL को आप लेके आओ और उसको आप विजुलाइज करो और आप चार्ट बनाना सीखो। ये अभी प्रॉब्लम है। मैं कैंडिडेट देख रहा हूँ तो हमारे काम के लिए मैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ। कोई भी मैनेजर या कंपनी ढूंढते हैं वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जिनके सपोर्टिंग पिलर स्ट्रांग होने चाहिए स्किल से। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी होने से सॉल्व नहीं होती। आप बहुत अच्छे एनालिस्ट नहीं बन जाएं। कोई भी बिल्डिंग जब अगर सीधी खड़ी करनी है तो सारे पिलर एक लेवल पे आने पड़ते हैं, नहीं तो यू विल हैव लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। आइदर योर फाउंडेशन इज वीक ऑन द वन साइड एंड स्ट्रांग अदर, और द फाउंडेशन इज कंप्लीटली वीक दैट यू डोंट नो वेयर यू आर टिल्टिंग। हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं उसमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डेटा रोल में ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं। शायद उनके पास जॉब है, जॉब नहीं है, maybe they're in their mid-20s, early 20s, and they are trying to figure out कि how do we get a role in the field of data. पावर क्वेरी मैंने आपसे सीखी थी पेन की वजह से। किसी का काम आपको सिखाना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सीखना आपका काम है, तब ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड करती है। All right, Saurabh Kushwaha, welcome to this little conversation. Saurabh, start करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा let's say 2 minute में please tell me and everybody who's watching, what are you doing at the moment, what has been your past life like, and then I'll start asking several questions that I have from you. All right, Chandeep, thank you very much for having me on this conversation. I think ये हमारा दूसरा talk है या तीसरा talk है, and it's always fun to kind of have a conversation. Not that हम बात नहीं करते हैं, we talk very often. But I think it's our conversation. हम जो आपस में बात करते हैं हमारे business के लिए, something that is valuable, and I think we will share those with our audience, your audience. Sure. So आपके audience के लिए एक quick introduction कि मैं कौन हूँ. Guys, hello, my name is Saurabh. मैं Goodly Insights का co-founder हूँ. And as you can understand, Goodly Insights matches with Goodly. So Chandeep और मैं साथ में काम करते हैं। Goodly Insights हमारी consulting firm है और Goodly हमारी training and content development firm है। I take care of all the consulting work. What does it entail means we help companies, बड़ी छोटी कंपनियों को हम help करते हैं उनके data challenges, decision making challenges को ईज आउट करने के लिए। सो दैट्स ब्रॉडली ये हमारा काम है। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, आई नो चंदीप फ्रॉम आवर कॉलेज डेज, MBA डेज, एंड हम दोनों ने अपनी करियर की स्टार्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से करी थी। वी वर्क देयर फॉर couple of years, and then I moved on to retail, and I have worked with some of the largest retail firms in India, Future Group, जो अभी नहीं रही, got acquired, and with Reliance Retail मैंने काफी रोल्स हैंडल किए हैं, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, corporate strategy, and finally when I left Reliance Retail, I also got an opportunity to work as category lead. And इन सारे कामों में जो मैंने 15-20 साल अपने करियर में किया, इन सब में एक कॉमन था, बहुत सारा डिसीजन बिजनेस लेता है और उसका बेसिस 2 होता है। एक होता है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज जो शायद काम करके आता है, एंड दूसरा होता है डेटा। एंड I used to work a lot with data, a lot, and that's where I fell in love with the science around using numbers, information, and insights to kind of help businesses achieve their strategies. So that's in a nutshell I did. Sure. Eventually, as a category leader, it came out very handy. मेरे लिए बहुत काम में आया, जहाँ मैं अपनी टीम को मैनेज कर पाया, मैं अपनी कैटेगरी मैनेज कर पाया। आज के जमाने में जहाँ ज्यादा ट्रेड डिजिटल हो रहा है, डेटा भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो एक तरीके से डेटा डिल्यूज भी हो जाता है। कभी-कभी बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है जिसमें से आपको it's like a needle in a haystack scenario. That's an interesting scenario. So, like how to filter critical information from all of the noise was something that I learned as a category manager, because there you are capturing every damn clicks, streams, every information, and then you have to decide how do you base your insights. So that's about it, and that's what led me to start Goodly Insights with Chandeep. Sure. We started 2 साल पहले हमने ये चालू किया, and thanks to God grace and all the hard work that our team does, and thanks to Goodly's Chandeep's awesome videos, we are doing pretty well, and we are getting renowned by some of the great companies and getting opportunity to work with likes of HUL, Biostop, which is Nivea, Kotak,
and many more big companies and small companies. So this has been a rewarding journey. A few weeks from now, we are doing a Power BI Foundations workshop. This workshop is targeted towards the beginners in Power BI. That means your level is as such where you have learned Power BI, you know how to load the data. You also know how to probably make some fancy charts and visualizations, but you kind of get stuck while building real-time practical solutions that companies actually pay for and hire for. In case you would like to learn that how do you take your level to a more advanced level where you start thinking about Power BI solutions and also building it, and the core skills needed to be able to learn Power BI in the right way, then this workshop is the right workshop for you. I'll talk about what are things that companies actually pay for. Since we also run a consulting company, we'll also talk about the practical projects that we have done in the company. And I'll also talk about real-time skills that you should develop in Power BI to be able to take your skills from the level where you're a beginner to a more advanced level so that you can build solutions in Power BI. It's a free workshop. The link is down in the description. I highly recommend that you attend one in case you are a beginner in Power BI. अच्छा सौरभ, हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डेटा रोल में ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं. शायद उनके पास जॉब है, जॉब नहीं है, maybe they're in their mid-20s, early 20s, and they are trying to figure out कि how do we get a role in the field of data. काफ़ी सारे लोग हमें especially tool specific learnings के लिए follow करते हैं like Excel और Power BI और डेटा विजुअलाइजेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. मैं जनरली एक कॉन्सेप्ट देख रहा हूं अभी मार्केट में कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है. एक स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लेट्स से Power BI सीखना चाहते हैं, which is a very very prominent data tool. बहुत सारे और tools भी हैं. Excel का कोई मैच नहीं है, but एक prominent data tool जो emerging tool है, which a lot of companies are using, Fortune 500 companies are using, जिसके अगेंस्ट में जॉब ओपनिंग निकल भी रही हैं, वो है Power BI. इसके अराउंड एक बहुत बड़ा misconception, I'm seeing it repeatedly over and over again, is that people learn how to take data from, let's say, an Excel, dump that in Power BI, make charts, and that's the learning journey. That's the start and that's the end of Power BI. तो सबसे पहला क्वेश्चन, in your opinion, how true is that? Although I have an answer to this as well, but since I wanted to ask you because you head our consulting practice, you work with the clients, and the primary tool that we use is Power BI. हम लोग hire भी करते हैं Power BI consultants. तो मुझे तुमसे जानना है कि ये कितना सच है कि यानी कि making visualizations, loading the data from Excel and making visualizations is the start and end of Power BI. ये मेरा पहला question है कि how true is that? And second question is that if this is not true, then what do you expect people to start learning? Somebody who has just learned this as the starting journey. So you can stage your answer and maybe you can then talk about it. So yes, Power BI itself a fairly young technology है. When I say young, आप Excel ले लो, या 10 साल ही हुए हैं. 10 साल का बेबी 2025 जून जुलाई में आया था शायद. Sorry, you mean to say 2015? Sorry, not 2025, 2015. My bad. Yeah. 2015. Broadly, I think 10 साल हुए हैं इस टूल को. ये young tool है and इसकी awareness level और skill in the market already low है. And जो आप कह रहे हो कि yes, हम, and मैं ये confidently कह सकता हूँ चंदीप because हम लोग hire कर रहे हैं. Whenever we hire talent हमारे consulting assignment के लिए, particularly Power BI developers, of thousands and thousands of resumes जो हमें मिलते हैं और हमें screen करने पड़ते हैं और जब हम interview लेते हैं, एक कॉमन पैटर्न हमें दिखता है कि लोग पावर बीआई को लार्जली विजुअलाइजेशन टूल की तरह बस पढ़ रहे हैं. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट पावर बीआई एज अ टूल फॉर रिपोर्टिंग इज मच बियॉन्ड just reporting, but yes, making this charts. Is the problem, making the charts. ये अभी प्रॉब्लम है. There are a lot of talent who are learning Power BI, जो सीख रहे हैं और वो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मे बी Excel, CSV, SQL को आप लेके आओ और उसको आप विजुअलाइज करो और आप चार्ट बनाना सीखो. जबकि डेटा एनालिसिस और जो काम रिक्वायर्ड है वो इसके मच बियॉन्ड है. एक छोटा सा एग्जांपल देखिए सौरभ, बताओगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि द वर्क इज मच बियॉन्ड टेकिंग द डेटा फ्रॉम वन सोर्स इन एक्सेल, इंपोर्टिंग इट इन पावर बीआई और उसके ऊपर आपने चार्ट बना दिए जस्ट टू फिल अप द कैनवस और आपका पावर बीआई डैशबोर्ड रेडी एंड यू कैन राइटफुली write in your resume that मेरे को Power BI आता है. And you could probably have made 2 or 3 similar projects and you could say that मैंने 3 projects किए हैं. But if you are saying that this particular statement is not true, एक मेरे को practical example of a consulting experience देके बताओगे कि companies क्या expect करती हैं या उनकी problem कैसे और difficult होती है than just making a chart? Like, can you pinpoint to a very specific example? Of course, yes.
सो टिपिकली जब भी कोई काम आता है हमारे पास जहां पर हमको इवेंचुअली कंपनीज को बहुत फैंसी चार्ट नहीं देखने होते हैं, वो कंपनी का वन नाम ऑफ नहीं लेते हैं, बट हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। सो लेट्स से एक ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है जिनके लिए हम काम ओके, करते हैं। उनके बिजनेस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम मूविंग ऑलराइट, गुड्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एंड ओके, हर एक स्टेप में डिले हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं जो इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव को चेंज करते हैं। या तो आपका सामान डिले पहुंचता है, या कोई एक रिस्क आ जाता है आपके पास, या आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, या घट भी सकती है। ये सारे सिनेरियोज होते हैं थ्रू आउट वन ट्रांजैक्शन की भी सामान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। टिपिकली जब बिजनेस डिसीजन करता है कि भाई मेरी एफिशिएंसी क्या है, या मुझे ये जानना है कि मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, कहाँ पर मेरे लीकेजेस हो रही, लीकेजेस मतलब मैं कहाँ ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, कहाँ मैं ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, क्या पॉइंट्स है ऑफ फेलियर मेरे बिजनेस लाइन में। हमें जब स्टेटमेंट आते हैं बिजनेस से, ये आते हैं, हमें डेटा नहीं आता है। हमें सीईओ से क्वेश्चंस आते हैं कि ये मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम है, आज मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ उसमें से कितने पैसे ऐसे हैं जो मैं बचा सकता हूँ। दैट इज द इंक्वायरी दैट कम्स, that ओके, is the typical work ब्रॉड that a क्वेश्चन। data analyst will get. It's a broad question that comes from executives. It could be a line manager or a senior manager or CEO. आप जितने हायर लेवल जाएंगे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट उतना कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिमेंशनल एम्बिगुअस, होते जाएगा, इसका मतलब एम्बिगुअस भी होते जाएगा। अभी राइट, लेट्स से जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक सप्लाई चेन हेड है, उसका सिंपल प्रॉब्लम है कि बॉस आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरा इतना खर्चा कैसे हो रहा है, इसमें से कौन सा जेन्युइन है कौन सा नॉन जेन्युइन है, ठीक राइट। है, नाउ जब ये सिनेरियो आता है, कई बार जो हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है वो लीडर है, उसको वो इस चीज में नहीं जाना चाहता कि कितना डेटा सेट है, कहाँ से आप लोग कैसे लोगे। यानी जो राइट, डेटा भी आता है इस डिसीजन को करने के लिए, पॉसिबली आपके पास कुछ डेटा फाइनेंस से आ रहा होगा, कुछ डेटा आपके वेयरहाउस से आ रहा होगा, कुछ डेटा लेट्स से आपके पिक लिस्ट या ट्रकिंग एजेंसी से आ रही होगी जिनसे आपने काम कर रही होगी। अब ये सारी डेटा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से हो सकती है, या एक ही सिस्टम में हो सकती है, बट बहुत अलग तरीके से रिकॉर्ड हो कोई रही ऐसा होती है। रीजन कि ये डेटा स्कैटर्ड है, आइसोलेटेड है, अलग अलग सिस्टम से है? क्योंकि जनरल लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सेल में डेटा है, सेल्स का डेटा है, उसको पावर बीआई में लोड किया और उससे चार्ट बना, पावर बीआई खत्म। तो रीजन क्या है कि ये डेटा स्कैटर्ड है, और ये अलग अलग डेटा सेट पे काम करके कैसे आंसर निकलेगा, इसका रीजन भी बताओ। श्योर, ऑफ कोर्स, वेरी बहुत सही क्वेश्चन है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डेटा इतनी जगह क्यों है। हमें एनालाइज तो एक जगह करना है, कि एक जगह हो नहीं सकता क्या। बट द पॉइंट इज, देखिए ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं बिजनेसेस के। हो सकता है एक प्रोसेस, लेट्स से ट्रक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिनके लिए कंपनी ने एक टूल खरीदी है और वहां पर उसके ट्रक की रिकॉर्डिंग हो रही है। नाउ ये टूल सेपरेटली है, आपके ईआरपी से बात नहीं करती है, आपने थर्ड पार्टी एजेंसी का सॉफ्टवेयर ले रखा है। लेट्स से फिर मतलब जैसे आपका नीड, जैसे 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 बिजनेस को जैसे नीड नीड आती आती है, जाती है, वैसे 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 वो, वैसे आप टूल लेते हो, वैसे टूलिंग करनी पड़ती है अपने बिजनेस में। टूलिंग का मतलब कि भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो कहीं पर पंच कर रहे हो। कई बार वो आपका सैप सिस्टम होता है, कई बार आपके राइट, इन हाउस अलग सिस्टम होते हैं, कई बार आपके वेंडर पार्टनर के सिस्टम आप यूज कर रहे होते हो। सो दे आर मेड टू डू दैट जॉब स्पेसिफिकली वेरी वेल। उनका काम रिपोर्टिंग नहीं है, उनका काम है एफिशिएंट वे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और प्रोसेस को मेंटेन करना, राइट। बाय प्रोडक्ट होता है कि उसमें डेटा रिकॉर्ड होता है जो अब आपको पढ़ना है और उससे डिसीजन बनाना है। गॉट तो इट, ये जो प्रॉब्लम है, चलिए ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जहां पर लोग सारा प्रोसेस एक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैप। बट विद इन सैप भी अगर मैं एग्जांपल लूं, हर एक मॉड्यूल अलग अलग होता है, हर अलग एक अलग होता मॉड्यूल है, का पर्पस अलग राइट। होता है और उनका डेटा स्ट्रक्चर अलग होता है, और वो बनाया जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए नहीं बनाया जाता है। रिपोर्टिंग बाई प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट। थोड़ा सा इस चीज को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या है और प्रोसेस मैनेजमेंट और डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या है? यस यस, सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूं चंदीप, और यही एग्जांपल लेता हूं जो हम एक करंट कस्टमर के लिए ट्राई कर रहे हैं। करेक्ट, लेट्स से सामान को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करना है और कॉस्ट देखना है। ये दो अलग अलग डेटा पॉइंट्स है। सामान मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है एक सिस्टम पे जिसको हम नाम देते हैं कॉमसैट, लेट्स से फॉर हैप्पी। उस सिस्टम का काम है ये मेंटेन करना कि सामान लूज ना हो जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल मेंटेन हो और करेक्ट, वो टाइम पे मूव होते रहे। ये उसका प्रोसेस है, वो उसका एंड ऑब्जेक्टिव है। उसका करेक्ट, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं है।
वो इंश्योर करना चाहता है कि अगर आपने सामान को किसी को हैंडओवर किया है तो मतलब डेटा वो कैप्चर उसका डेटा डेटा कैप्चर कैप्चर होना चाहिए और प्रोसेस जो आपने सेट किया आपके बिजनेस का वो फॉलो होना चाहिए। यस परहैप्स वो सॉफ्टवेयर इतना स्पेशलाइज्ड है कि जैसे ही ट्रक आपकी प्रेमिस में एंटर हुआ थ्रू सम कैमरा और समथिंग इट्स एबल टू रिकॉर्ड सर्टेन रोज ऑटोमेटिकली फिल द डेटा ऑटोमेटिकली फिल द डेट ऑटोमेटिकली क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है इट बिकम्स ईजियर एंड ऑल्सो मोर प्रॉफिटेबल एंड ईजी फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट दैट ताकि जितने भी ट्रक्स हमारे कंपाउंड में गुड्स को कलेक्ट करने के लिए और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं उन सारे ट्रक्स का मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिजाइंड ही वैसे है दैट इट बिकम्स इजियर टू कैप्चर द डेटा in that. Correct. By reporting, Correct. I believe what you mean to say is that एक बार ट्रक्स का डेटा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कैप्चर हो गया तो मंथ के एंड में आपको ये जानना है कि कितना गुड मूव हुआ कितने ट्रक आए कितने ट्रक टाइम से आए कितने ट्रक टाइम से नहीं आए कितने ट्रक्स ऐसे थे जो एडहॉक रिक्वायरमेंट के लिए आए यानी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनके बाहर हमें जाके और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से बात करनी पड़ी वहां के ट्रक्स हमें लाने पड़े एट अ हायर कॉस्ट और वो हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर्स नहीं है ये जो क्वेश्चंस हैं कि जो काम हुआ जो डेटा कलेक्ट हुआ उसकी एफिशिएंसी अच्छी है नहीं है बिजनेस से उससे फायदा किया या नुकसान किया वो सब मे बी रिपोर्टिंग क्वेश्चंस हैं सो व्हाट यू आर सेइंग इज डेटा मैनेजमेंट एंड कैप्चरिंग इज वन पार्ट ऑफ द वर्क एंड रिपोर्टिंग is another part of the work. तो मेरा एक follow-up question ये भी है सौरभ कि when you were talking about the reporting to the supply chain head or the logistics head, you said that one source of data is not adequate almost always यानी कि मुझे वो ट्रक का डेटा देखना है प्लस मुझे वेयरहाउस और फाइनेंस का डेटा भी देखना है जो अलग सिस्टम्स में चाहे वो मैन्युअली रिकॉर्डेड है चाहे वो सैप से आ रहा है या सीक्वल से आ रहा है बट जब तक मैं ये सारा डेटा कंबाइन नहीं करूंगा एक फुल पिक्चर मैं एक डिपार्टमेंट हेड को या एक सीएफओ को एक सीए को नहीं दिखा सकता तो उसका क्या नीड होता है लाइक व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द अदर सिस्टम्स टू कम इन ओके सो देखिए हम ऑल ऑफ द रिपोर्टिंग इवेंचुअली एक बिजनेस डिसीजन और प्रोसेस को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है लेट्स से एक सप्लाई चेन हेड के लिए कई सारे केआरए हैं जो उसको देखने हैं उसको ये नहीं देखना है कि ट्रक टाइम से आ रहा है कि नहीं जा रहा है वो काम किसी और का है उसको ये देखना है एट अ कंपनी लेवल मेरा प्रोसेस चल रहा है क्या मेरे प्रोसेस में क्या गैप है ऑपरेशंस वाइज क्या गैप है इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो बिजनेस को एक्सपेंस हो रहे हैं या उससे जो गेन हो रहा है दोनों चीज हो सकती है आप अर्न भी कर सकते हो बट मोस्टली हम सप्लाई चेन बात कर रहे हैं तो यहाँ कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो रहा है एंड लेट्स से उसके आगे उसको देखना है कि इसमें और एफिशिएंसी अगर हमें लानी है तो हमें कैसे लानी है तो एज अ लीडर जैसे मैं कह रहा था जैसे आप हायर एक ऑपरेशन से मूव करके एक सब ग्रुप ऑपरेशन पे जाते हो तो आपका डिसीजन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं हो सकता आपको 2-3 चीजें देख के डिसाइड करनी होती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है लेट्स से सप्लाई चेन हेड को अगर डिसाइड करना है कि मुझे और फ्रेट नेगोशिएट करना है क्या मेरे लोगों के साथ मेरे वेंडर्स के साथ दैट्स द प्रॉब्लम फ्रेट नेगोशिएशन करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर परफॉर्मेंस भी जानना होगा मतलब कितनी गाड़ियां दे रहा है टाइम पे दे रहा है नहीं दे रहा है जो ऑपरेशनल क्वेश्चन है फिर ये भी जानना होगा कि भाई वो हमें चार्ज कितना कर रहे हैं और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यहाँ आप दो चीज मैच हो गए ऑपरेशनल भी मैच हो गया और आपको अब आ गया फाइनेंस डेटा भी मैच हो गया उसके बाद हो सकता है उसमें कंप्लायंस एंड रिस्क के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां ट्रांसपोर्टर ने हमारा माल अटका दिया या एक्सीडेंट हो गया तो आप वो अलग कैप्चर हो रहा है कहीं और कैप्चर हो रहा है द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज जैसे जैसे आपका बड़ा बिजनेस होगा अभी तो अब हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया तो देयर इज ऑल टुगेदर अ न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आ जाएगा शिपिंग पार्टीज कॉम्प्लेक्स हो जाता है सो थिंक अबाउट अ बिजनेस इट इज वन यूनिट जिसका एक काम है देन जब बिजनेस आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बिजनेस एज अ होल आप देखेंगे वो एक प्रोसेस से जुड़ता हुआ मल्टीपल प्रोसेस ऐड होते जाएंगे जब ये प्रोसेस ऐड होते हैं उन प्रोसेस के इंटरलिंक्ड डिसीजंस होते हैं दैट्स व्हाई दिस कॉमन रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज आप एक डिसीजन नहीं ले सकते सिंपली सेइंग दैट मैं इस ट्रांसपोर्टर को रखना चाहता हूं बिकॉज ये टाइम से ट्रक लगाता है और लगाता है दैट्स नॉट द मेट्रिक है also linked to finance, also linked to जो हम लोग जनरली इस इंडस्ट्री में टैट कहा जाता है या SLA कहा जाता है उनके एडहेरेंस क्या है उनके कंप्लायंसेस क्या है कितना वो रिस्की है नॉन रिस्की है कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो नाउ ये क्वेश्चन पूछ देना कि ये ट्रांसपोर्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको आंसर करने के लिए आपको 4 चीज देखनी पड़ेगी
क्या वो करेक्ट, मेरे लिए कॉस्ट कितना बिलिंग हुआ क्या है, वो मेरे लिए उसने कितने हाँ एफिशिएंटली, यस, कितना वॉल्यूम मेरा मूव कर रहा है, क्या गुड्स मूव कर रहा है, ये बहुत ही क्या वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर है, हो सकता है मैं कई सारे सामान बना रहा हूँ, कुछ फ्रेजाइल है और कुछ नॉर्मल है, कुछ किसी भी ट्रक में जा सकते हैं और कुछ एक स्पेसिफिक वेंडर के पास ही जा सकते हैं या कोल्ड राइट, स्टोरेज के थ्रू ही जा सकते हैं। तो राइट, नाउ दैट बिकम्स द नीड दैट ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इंफॉर्मेशन आएगी। कुछ बड़ी कंपनी है तो उन्होंने सिस्टम रखे होंगे, छोटी कंपनी है तो भी वो सिस्टम रखते हैं, बट ये सिस्टम मोस्टली एक्सेल होता है या राइट, फॉर्म्स होते हैं मैन्युअल डेटा या कैप्चर होता है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स होता है, कुछ भी हो सकता है। एंड राइट, दैट्स व्हाई द एंटायर नीड। जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, हम टिपिकली जब पढ़ रहे होते हैं तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सेल्स देख लो, ऐसा देख लो, बट सेल्स भी बहुत डाइवर्स होता है। आपका सेल्स स्टोर पे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर चैनल भी हो सकता है ना। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो अमेजोन से डेटा आएगा, वो आपका डेटा नहीं है। आपको वो जानना है तो आपको फिर अमेजोन डेटा मर्ज करना पड़ेगा आपके सेल्स डेटा के साथ जो आप सेल कर रहे हो। फिर मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट भी ऐड कर लिया अपने चैनल में, तो उसका दैट इज द डेटा अलग रीजन आएगा, उसका डेटा अलग आएगा, वो अलग तरीके से आएगा, क्योंकि वो आपके सिस्टम नहीं है, वो किसी और के सिस्टम है जहां जो बने हैं उनकी एफिशिएंसी के लिए, वो जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। नाउ आप उसमें से डेटा लेना चाहते हो ताकि आप डिसीजन कर पाओ एज अ कॉमन एट अ मच हायर लेवल। So that's the reason why the reporting becomes complex and there is a need for multiple data sources. This point is clear that the stuff which is out there on the internet most of the times, जहाँ पे एक बहुत ही simplistic data लिया जिसमें 10, 12, 15 कॉलम है, उसको पावर बीआई में लोड किया, उससे विजुअल बनाया, पावर बीआई का वहां पे दी एंड हो गया। दिस इज completely and massively inadequate अगर आपको कोई रियल टाइम पावर बीआई की या लेट्स से डेटा एनालिटिक्स की जॉब चाहिए। अभी मैं सिर्फ पावर बीआई की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही प्रोमिनेंट टूल है, बट जो ये बिजनेस की नीड है, जहां पे बिजनेस को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को कंसोलिडेट करके देन एक कंप्लीट पिक्चर देखनी है, ये रेयरली चेंज होगा। चाहे आप इसके लिए पावर बीआई यूज करो, टैबलो यूज करो, एक्सेल यूज करो, सीक्वल यूज करो, जो मर्जी आप टूल यूज करो, बट द नीड ऑफ द बिजनेस is not to take a look at the data in the silos and then take a look at the complete picture by merging or by working with multiple data sets of a single time frame together, कभी कभार different time frames के भी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो हम सीख रहे हैं on the internet versus what is the company that is actually needing is vastly different। सौरभ, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये इस गैप को फिल कैसे किया जाए? मतलब एक तो ये है कि दिस इज व्हाट पीपल आर लर्निंग एंड दिस इज व्हाट यू शुड लाइक, दिस इज व्हाट आई नीड। तो कैन यू मे बी टॉक अबाउट 3 or 4 skills that you look for in a candidate that make him a qualifying candidate? अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो स्किल डेवलप कैसे करनी है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि what is it that we as a company or any other company that is solving such complicated problems for top tier clients, in fact हम जिन clients के लिए काम करते हैं, those are the best companies in the world, running multi-million and multi-billion dollar businesses. So, and they come up to us with some very hard problems. तो अगर हमें ऐसे लोग हायर करने हैं which can help our customers solve these problems, so what are the skill sets, 3 or 4 qualifying skill sets that we look at which make a candidate as a good candidate? I'm not talking about how do we develop such skill sets, वो हम बाद में बात करेंगे, but what are those skill sets? Sandeep, you just stole my word. मैं ये point raise करने ही वाला था। Sure. And let me, मैं अपना हमारा hiring experience से थोड़ा correlate करता हूँ। Absolutely. Please go ahead. Yes, be absolutely candid and honest about it. जब हम लोग hire करते हैं, हम कुछ specific skill set देख रहे होते हैं, and I will talk what those are. Yes. But उससे पहले जब मैं एक candidate देख रहा हूँ तो हमारे काम के लिए मैं उनके अंदर कुछ specific traits ढूंढ रहा होता हूँ। Sure. And वो traits basically स्तंभ है, पिलर है। आप कोई भी स्किल बीच में डालो, अगर ये स्तंभ से वो ट्रेड्स सपोर्टेड है तो यू कैन बिल्ड अ स्काई स्क्रेपर ऑफ योर स्किल, राइट? ओके, तो फाउंडेशनल स्किल्स की बात कर रहे हो तुम। मैं फाउंडेशनल स्किल्स पे आ रहा हूँ। उसके ऊपर चाहे तुम कुछ भी बना सकते हो, फाइनेंस की बैकिंग बना सकते हो, किसी भी चीज की बैकिंग बना सकते हो। करेक्ट, आप स्किल की बैकिंग बना सकते हो, आप टूल की बैकिंग बना सकते हो, आप क्रॉस डिसिप्लिनरी में जा सकते हो, इट्स एंडलेस। सो लेट्स इमेजिन, लेट्स से हम पावर बीआई डेवलपर की बात कर रहे हैं, तो हम एक स्किल की बात कर रहे हैं कि भाई पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स, ये एक स्किल है मुझे जो किसी में चाहिए। अब ये स्किल कोई कैंडिडेट डेवलप कर रहा है तो उसके अराउंड हम क्या ढूंढते हैं?
सेंटर पॉइंट है ये स्किल। और हम जब लोग ढूंढते हैं या कोई भी कंपनी ढूंढती है, हम यूनिक नहीं है, कोई भी Right. मैनेजर या कंपनी ढूंढते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जिनके सपोर्टिंग पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए स्किल से, ताकि वो स्किल अपने आप बना ले जब वो हायर हो, जब उसको डिफिकल्टी आए। बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे ये अज्यूम करना कि क्या प्रॉब्लम आएगी, ये किसी को नहीं पता होता है, या बिजनेस के साइड। तो ये पिलर्स क्या है? लेट्स से द फर्स्ट पिलर दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इज योर टेक्निकल नॉलेज। आपका पहला टेक्निकल नॉलेज मतलब टूल कितना अच्छा आता है। टूल कितना अच्छा आता है, ये आपका सेंटर है। अब ये इवेल्युएटर है। नाउ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी पिलर्स आ जाते हैं, और ये कितना स्ट्रांग है वो डिफाइन करेंगे कि आपका स्किल आप कितना अच्छा कर पाओगे, और वो एविडेंट भी है। सो पहला जो स्तंभ है, जो क्रिटिकल स्तंभ है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या? अंग्रेजी बोलना, क्या हिंदी बोलना, क्या मतलब एग्जैक्टली? बहुत एग्जैक्टली? सिंपल तरीके से बताता हूँ। समझ पाना और समझा पाने की एबिलिटी टू explain someone or understand from someone. Now, In any language whatsoever. in any language whatsoever, right? Got it. Right? इससे फर्क नहीं पड़ता। Of course, language will depend आपके क्लाइंट के हिसाब से। Let's say बहुत सिंपल सिनेरियो रखते हैं कि हम इंडियन कंपनीज के साथ ही काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी। अभी के लिए फॉरेन लैंग्वेज को साइड में रखते हैं, बिकॉज दैट्स अ न्यू स्किल। वो ये अलग अलग स्तंभ है, ये आपके स्तंभ के पार्ट हैं। लाइक ये रीबार्स हैं आपके स्तंभ में। क्या इंग्लिश आता है, जर्मन आता है, XYZ, दीज आर समथिंग दैट यू कैन ऐड ऑन, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रीबार्स। आई एम सेइंग एक स्तंभ का कोर क्या है? कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपकी एबिलिटी कि आप समझ पाओ सामने वाले क्या कहना चाह रहा है, उसको क्रिस्टलाइज कर पाओ, और आप किसी को समझा पाओ या अपने आप को समझा पाओ। एग्जांपल देके बताओगे सौरभ? लेट्स से फॉर एग्जांपल, कैन यू कोट अ रियल एग्जांपल फ्रॉम अ क्लाइंट कन्वर्सेशन? व्हाट वुड इट मीन टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज ट्राइंग टू से, एंड व्हाट वुड इट मीन टू हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट कम्स राइट ऑफ योर हेड? ओके, so yeah, it happens daily, but ये daily होता है। इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा कि लेट्स से एक हमारे क्लाइंट है जो मीडिया में, एंड मीडिया इंडस्ट्री में, आई कांट टेक द नेम फॉर ऑब्वियसली, एंड वो काफी खर्चा करते हैं हर तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स में, डिजिटल, ऑनलाइन, ऑफलाइन। एंड जब उनके सीनियर लीडरशिप से हम बात कर रहे थे, तो हमें उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता चला कि वो जानना चाहते हैं कि भाई मेरे को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की नहीं है कि मेरा रीच क्या है। रीच क्या है? अब वो बार बार, बिकॉज वो इंडस्ट्री में है, वो बोल रहे हैं कि मेरा रीच क्या है। और हमने ये कॉमन क्वेश्चन लिया, रीच, एंड आई बिल्ड अप कि ये रीच क्या है, क्या इसका मतलब है इसका। तो हमने उनसे पूछा कि भाई कुछ और बता सकते हो, कुछ समझा सकते हो इसके बियॉन्ड, बट बिकॉज वो इतना काम कर रहे थे, उनके पास टाइम कम है, तो वो रीच एज अ वर्ड बोल के आगे निकल गया, और उसके अराउंड उन्होंने कुछ बातें बोली। नाउ हमारा काम था उनको एक डैशबोर्ड बना के देना, जो ब्रांड लेवल, कैंपेन लेवल एक इंफॉर्मेशन बताए कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों के पास तक पहुंच रहा है। ये रीच का मतलब, ठीक है। बट ये रीच को अराइव करने के लिए मेरे को और भी सबसीक्वेंट इनसाइट्स चाहिए थी, जो मुझे उन्होंने तब नहीं बताई। सो समटाइम्स हमें कॉन्वर्सेशन में बिटवीन द लाइन रीडिंग करनी पड़ती है कि इसका इवेंचुअल मीनिंग क्या होता है, और आप उसको कैसे देखते हो, और मैं उस डेटा को कहां से लूंगा और कैसे करूंगा, राइट, ताकि ये मैं आंसर कर पाऊं। डिस्टिलिंग की क्लाइंट क्या कहना चाहता था बाय रीच, वो हमारा काम बन जाता है। हमारा काम बन जाता है। मीडिया इंडस्ट्री में, लेट्स से ऑनलाइन में या टेलीविजन में, रीच, हाउ वुड द वर्ड रीच change its meaning, or what would the metric mean? It's what we have to somehow understand ourselves, client की अंडरस्टैंडिंग तक लेवल की पहुंचने के लिए। करेक्ट। तो ये पार्ट था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और इसमें और भी स्तंभ यूज होते हैं, तो मैं हाथ में बांधना हूँ। अब मेरी एबिलिटी समझाने की। नाउ ऑफन आपके साथ ऐसा काम होगा, जब आप जॉब करेंगे तो आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला और हम उसी पे काम करेंगे और डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करते हैं, आप क्लाइंट के साथ उनके लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। नाउ हमें पता है कि अगर मैं समझ पाया कि उनको क्या चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि मैं जो करना चाह रहा हूं, क्या मैं उनकी टीम को समझा पा रहा हूं क्या, एंड क्या मुझे वो इंफॉर्मेशन आ रहा है जिससे मैं काम डिलीवर कर पा रहा हूं। ये ज्यादा बड़ा गैप है। मेरे दिमाग में कुछ होना और मेरे को उस चीज को लिखित और वर्बल फॉर्म में किसी को बताना, ताकि वो एग्जैक्टली मेरे को सही आंसर दे
ये एक बहुत बड़ा स्किल है। इनफैक्ट हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स टाइम से खत्म होंगे या डिले होंगे, इस बात पे डिपेंड करती है डिपेंड करता है मैं कि हाउ कितना फास्ट अच्छा कैन यू समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड, कितना अच्छा समझा पा रहा हूँ। समझा पा रहा हूँ। That's right, because the sooner and faster you can understand, the faster you can do it, and the faster you can explain it, the faster you can convince the client that the project is done, which Yeah. is so true. अच्छा, तो ये तो पिलर नंबर 1 हो गया, ये पहला कम्युनिकेशन स्किल्स। एनीथिंग एल्स? या जैसे 4 स्तंभ है। चार, So, okay, fine, 4 yeah, of them. so I'll Okay. quickly touch up and stop me on one कि क्या इसका आप और मीन करते हो। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल एक्सप्लेन किया कि भाई अभी लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते हैं, समझाने और समझने की बात पे फोकस करते हैं, वो एक स्किल। दूसरा है एबिलिटी टू रीजन, ओके। रीजनिंग स्किल। अब हिंदी में आई थिंक इसको तर्क वितर्क रीजनिंग ही या रखते हैं। रीजनिंग ही रखते हाँ, हैं, वहाँ रीजनिंग मेरी रखते हैं। ये अच्छी नहीं है। बट Thumb is ये too much for Hindi for today. हाँ, thumb is too much for हिंदी। यू सेड कि ये हिंदी क्लाइंट बेस के लिए, तो मैं थोड़े वर्ड्स दिमाग में ठीक सोच है, के बोल रहा that's था। nice, that's nice. But हाँ, इतना भी ऐसा भी नहीं है, like people understand foundation, I believe. या ऑफ कोर्स these are foundations, yes, हाँ, फाउंडेशन स्किल्स है। रीजनिंग स्किल, अभी तक हमने बात किया कि इंफॉर्मेशन सिर्फ टेबल्स और रो में नहीं होती है। इंफॉर्मेशन हिडन कॉन्वर्जेशन में होती है। इंफॉर्मेशन वो टेबल्स और रो में भी हिडन होती है। आपको इंफॉर्मेशन के साथ रीजन करना पड़ता है, ये जरूरी है, ये नहीं जरूरी है, ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे लिए किस तरीके से काम है। तो ये जो क्रिटिकल स्किल्स हैं कि मैं रीजन कर पाऊं, अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन कर पाऊं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, उसके पास मेरा कोई सोल्यूशन आया है, तो मैं उसको किस स्टेप से ब्रेक थ्रू करूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये नॉट ओनली डेटा एनालिस्ट, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए भी important है to do any kind of work. यस, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये इसलिए पहले बोला कि आप बीच में कोई भी स्किल डाल दीजिए, ये स्तंभ चेंज नहीं होंगे। अब मैं डेटा एनालिस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या जब कोई हमारे लिसनर्स किसी भी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनको एम्बिग्विटी से सराउंडेड रहेंगे। वो उनके पास एक्सेल एंड एक्सेल नंबर रहेगा, उनको डिसाइड करना होता है, रीजन करना होता है, पहले तो अपने वो एक्सेल सेल और नंबर से ये क्या है, क्यों है, और ये होने का ये रीजन होगा। कई बार आपको हर बार आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सामने में क्लाइंट नहीं बैठा होता या बॉस नहीं अवेलेबल होता, तो आपको व्हाट इफ सिनेरियो रन कर करके अपने दिमाग में अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को यूज करते हुए, अपने नोट्स जो आपने बनाए उसको यूज करते हुए और डेटा को देखते हुए एक रीजनिंग बनानी होती है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है। एंड देन कुछ बना के आपको प्रेजेंट करना होता है, और फिर वहां से जो इनपुट आएगा तो आप फर्दर रीजनिंग करते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन आइटरेटिव टूल जो हम लोग यूज करते हैं। मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चन अबाउट योर डेटा विद द डेटा। पहले पढ़ो कि वो लाइन क्या मीन करती है और वो क्यों हुई होगी, उसको होने का रीजन क्या होगा। अगर वो आप समझ गए, आप कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हैं, आप मॉडल अच्छा बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट से रिलेटेड है, दो अलग अलग जगहों पे है, ये इसलिए रिलेटेड है, तो इनके बीच का ये रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब इनके बीच की ये इंटरेक्शन होनी चाहिए। Correct. कि भाई ऐसे Like if काम one है। goes up, the other one, how does it affect the other one, and so on and so forth. करेक्ट करेक्ट। कई बार एक और लास्ट पॉइंट रीजनिंग पे मैं थोड़ा स्पेंड करूंगा जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। लोग केपी डैशबोर्ड पे चार्ट्स, ग्राफ्स या केपीआई देखते हैं। रीजनिंग स्किल से आप अपने डैशबोर्ड को और इनहांस कर पाते हो। क्या ये जरूरी है? क्या ये वो चीज देखना चाहते हैं? और अगर ये देखना तभी चाहते होगा हैं जब आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी नीड समझे हो। करेक्ट, एंड देन आप अपने आप से रीजन कर रहे हो, उनके साथ रीजन कर रहे हो कि क्या ये सही है आपके लिए। करेक्ट। पहला क्वेश्चन, क्या ये मैट्रिक मैटर करता है आपके लिए, और क्या गिवन द क्वेश्चन ये विजुअल या ये सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन मिसिंग। दैट्स व्हाट इज रीजनिंग स्किल इन द प्लेन सेंस ऑफ डैशबोर्डिंग। श्योर, राइट। सो दैट्स स्तंभ नंबर 2। द थर्ड स्तंभ वो है, एंड नाउ इट बिकम्स मोर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक हो जाती है, हालांकि ये भी जेनेरिक है। is an ability to problem solving skill, right? Okay. Now जैसे जैसे और स्तंभ ऐड करूंगा, उनके बीच की जो क्या बोलते हैं, they kind of blur between, but वो अलग अलग है। रीजनिंग अलग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो होती है जहां पर आप गिवन स्टेटमेंट को या सिनेरियो को स्टेप्स में ब्रेक कर पाओ और उनमें से आइडेंटिफाई कर पाओ
कि क्या स्टेप लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेप लीडिंग टू द सबसीक्वेंट स्टेप। एक तरीके का ये डिसीजन ट्री टाइप थिंग होता है। इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, इफ नॉट देन दिस हैपेंस, एंड दैट्स वेयर यू फाइंड प्रॉब्लम्स हिडन। Problems are not Right. apparent. Problems are always hidden. If it were apparent, then why do I even had a need? और आपकी भी क्या जरूरत है, तो मैं भी सॉल्व right. करूँ। Now because problem complex होते हैं, वो hidden होते हैं, कभी डेटा में hidden होते हैं, कभी actions में hidden होते हैं, कभी process में hidden होते हैं। आपको problem solving skills आनी चाहिए, और कुछ अच्छे frameworks हैं जो बहुत लोगों ने डेवलप किए हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को उस फ्रेमवर्क में डाल के इवैल्यूएट कर सकते हो, और ये आपको आना चाहिए। नाउ लेट्स से दैट फ्रेमवर्क, क्या एग्जांपल हो सकते हैं फ्रेमवर्क के? लाइक मेसी, बहुत कॉमन चीज है जो हमने सुनी होगी। The one that McKinsey uses. McKinsey uses म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। इसका मीनिंग सिंपल तरीके में ये है कि हर एक पॉइंट को आप इंडिविजुअल यूनिट लेवल पे भी देखोगे और ओवरऑल लेवल पे भी देखोगे, एंड देन आप एक एक करके उसको नलिफाई करते जाओगे कि हाइपोथेसिस ये है ट्रू, ये है ट्रू, ये नहीं है ट्रू, एंड कलेक्टिवली ये क्या करता है। इसके ऊपर एक entire book लिखी गई है that both of us have read multiple number of times. It's called the McKinsey Way. तो अगर आप interested हैं problem solving books के ऊपर पढ़ने के लिए, तो it's a great book to read. It's a short tiny book that I will highly recommend to read. It's a lovely book. So that's on the problem solving skill. नाउ द फोर्थ पिलर। इस पिलर के कई सारे नाम हो सकते हैं, बट मैं जो अपनी टीम में देखना चाहता हूं, और किसी में भी कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए, एंड दैट इज एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू लर्न। पोटेंशियल और एबिलिटी बोलो, ग्रिट बोलो, प्रैक्टिस बोलो, आप इसको बहुत नाम से यूज कर सकते हो, बट आपकी क्यूरियोसिटी और रुचि कितनी स्ट्रांग है उस स्किल के लिए, वो डिसाइड करती है कि आप कितना अच्छा वो स्किल सीख पाओगे with all of these स्तंभ growing together। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी होने से सॉल्व नहीं होती, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे। आपको सारे स्तंभ, कोई भी बिल्डिंग जब अगर सीधी खड़ी करनी है तो सारे पिलर एक लेवल पे आने पड़ते हैं, तब जाके वो स्क्रेपर, नहीं तो यू विल हैव लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। Either your foundation is weak on the one side and strong other, or the foundation is completely weak that you don't know where you're tilting. Now that aptitude happens. However, संदीप, यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ जो इस राउंड ऑफ हायरिंग में हमें मिली, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, फोर्थ स्टम्प से। नाउ कई बार जब मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने देखा है कि लोग पावर बीआई या कोई भी टूल आउट ऑफ पैशन और आउट ऑफ नीड पिक करते हैं। 3 रीजन होता है अगर कोई किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कुछ भी चीज के लिए। पहला है ग्रीड या रिवॉर्ड, दूसरा है ग्रीड रिवॉर्ड, दूसरा है फियर और पेन, और तीसरा है इंटेंट, राइट? अगर मैं ये बोलूं चंदीप का या सौरभ का इंटेंट वाला चीज होगा कि मुझे बाइक राइडिंग सीखनी है या मुझे किताब पढ़नी है। अब मेरा इंटेंट है, मेरा इधर कोई वो नहीं है, मेरे को बस मजा आता है, मैं कर रहा हूं, मेरे को इंटरेस्ट है और मैं डीप जाना चाहता हूं उसमें। तो इंटेंट वो है जहां पर रिवॉर्ड और फियर और पेन इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। कोई भी चीज सीखने के लिए ये तीनों चीज चाहिए होती हैं। टिपिकली जब लोग स्किल देख रहे होते हैं, या तो वो ग्रीड से देख रहे होते हैं या रिवॉर्ड की तरफ से देख रहे होते हैं कि भाई ये सीख लूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। टिपिकल मैंने लोगों को देखा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मुझे एक्स सैलरी मिल जाएगी, वाई सैलरी मिल जाएगी, राइट? या लोग पेन की तरफ से अप्रोच करते हैं कि यार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को घर पे जाना है, किसी ने पावर क्वेरी बनाया, मैंने सीख लिया। टू टेल यू द ट्रूथ चंदीप, पावर क्वेरी मैंने आपसे सीखी थी पेन की वजह से, राइट? मेरे पेन ने मुझे रिवॉर्ड दिया, जब मैंने काम खत्म करके दिया तो मुझे रिवॉर्ड मिला, तो मेरे 2 चीज सेटिस्फाई हो गए, या पेन या रिवॉर्ड। अगर सिर्फ इनमें से कोई एक या ये सिर्फ 2 हैं तो आपकी लर्निंग टिल्टेड डेवलप होती है, क्योंकि आपको जब रिवॉर्ड मिल गया आप पढ़ना बंद कर दोगे, सीखना बंद कर दोगे, एंड आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई। आपको लगेगा, और ईगो सेट इन हो जाएगा, आपको लगेगा आपको बेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पावर बीआई में सिर्फ विजुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं, आप बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बनाते हैं, आपको अप्रेजेस मिल रहे हैं, मे बी आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं बिकॉज दिख रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, आपको जॉब भी मिल जाता है तो रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, आपका पेन भी सॉल्व हो गया कि भाई जॉब मिल गया। अब जब जॉब पे आप जाते हो तो जो हमने अभी तक बात करी, जो देख के आप हायर हुए वो तो नहीं करना था, करना तो है प्रॉब्लम सॉल्व, बट आपने तो सिर्फ आप वही लर्निंग में कि चार्ट बनाना था, एंड आप बॉस बोल रहे हैं मुझे चार्ट नहीं चाहिए बॉस, मुझे एनालाइज करके तो लिटरली प्रॉब्लम क्या है,
और वो आपको बता भी नहीं रहा कि कैसे जाना है, कैसे करना है. नाउ यू आर स्टक. अब एक नया पेन हो गया, और वो पेन लोग कैसे टाइप करते हैं, आई एम अनहैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. मैं यहाँ कुछ नया नहीं सीख रहा. आप नहीं सीख रहे, आप सीखना नहीं चाह रहे. किसी का काम आपको सिखाना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सीखना आपका काम है, तब ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड करती है. एंड देन लोग फिर से पेन में आ जाते हैं. अब वो सीखते हैं कि मेरे बॉस ने ये बोला था, मैं नहीं कर पाया, तो मैं ये करूंगा. तो जब आप लर्निंग सिर्फ रिवॉर्ड और पेन के बीच में रखते हैं, तो आपका एप्टीट्यूड हमेशा लो रहता है. आपका जो फोर्थ पिलर है वो डेवलप ही नहीं हो पाता, उसमें बहुत फ्रैक्चर्स होते हैं, राइट. बट जब आप इंटेंट भी मैच करते हो, तो आप वो टूल, वो स्किल के सारे एंगल्स पढ़ते हो, सब देखते हो, एंड देन आपका स्किल बहुत स्ट्रांग डेवलप होता है, इज व्हाट वी फील. सो जब हम इवेलुएट कर रहे होते हैं, या जब मैं अपने कैंडिडेट्स, हमारे टीम मेंबर्स इवेलुएट कर रहा हूँ, ये 4 स्तंभ पे इवेलुएट करता हूँ. स्किल तो टेस्ट होता ही है, वो सेंटर में है. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज वो स्किल नहीं है उनके पास. जरूरी है, मुझे पता है, क्या उनको पता है क्या क्या जरूरी है. ये तभी उसी कैंडिडेट से पता चल पाता है जिसके ये 4 स्तंभ पे उसने काम किया होता है. एट सर्टेन लेवल एटलीस्ट आपका अवेयरनेस आता है. तो दैट्स हाउ आई हैव बीन इवैल्यूएटिंग. संदीप, मैं भी, एक क्यूरियस क्वेश्चन है मेरे पास, एंड दिस वुड हेल्प. टिपिकली क्या होता है कि लोग गॉन आर द डेज व्हेन पीपल वर लर्निंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम प्रोफेसर्स, फ्रॉम मेंटर्स. These were hard learning. इसमें बहुत रगड़ा था. आज का दिन बहुत इजी हो चुका है, लर्निंग भी बहुत इजी हो चुकी है. पहले लर्निंग करने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना होता था, फिर फिगर आउट करना पड़ता था कि कौन सी किताब में होगा इन्फॉर्मेशन, तो 10 किताब खोलनी पड़ती थी, फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से पेज पे होगा वो इन्फॉर्मेशन. अब वो बहुत ईजी हो गया है विद द जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड. आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने जीपीटी में डाली और वो आ गई और आपने उसको कर ली. नाउ ये सिनारियो एक तरीके का बिहेवियर और पैटर्न डेवलप कर रहा है जो मुझे दिख रहा है. As a mentor, as a trainer, as a person who is through the world of content trying to communicate, what do you feel people should take away, that their learning is holistic and not just one video or just one chat or just only chats? Sure. Saurabh, I recently read a tweet or somewhere from Jack Dorsey, जो Twitter जिन्होंने चालू किया था. And he said, I think it's still there on his Twitter feed or something. I can't remember. But then he said that learning is supposed to be hard. It is meant to be hard. That's the nature of learning. And if it is not hard, then you haven't learned it. Learning का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज सीख ली. अब जो आपने सीखी है, आपका दिमाग किसी अनसर्टन सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो वो अनसर्टेनिटी को ग्रैपल करके समहाउ सॉल्यूशन फिगर आउट कर लेगा. लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी से आंसर निकाल लोगे. ऑब्वियसली यू कैन, बट लर्निंग का मतलब ये है, इन द इंस्टेंस ऑफ इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी, यू विल एबल टू नेविगेट योर वे थ्रू. दैट्स द मीनिंग ऑफ लर्निंग. दैट्स हाउ यू हैव जेन्युइनली लर्नड समथिंग. अभी आज के टाइम में थोड़ा ये आर्कियाक होगा कहना कि नहीं, आप चैट जीपीटी यूज मत करो, गूगल यूज मत करो, गूगल इज स्टिल ओल्ड. आप चैट जीपीटी यूज मत करो या कोई एलएलएम यूज मत करो और आप लाइब्रेरी जाके एक एक किताब खोल के पढ़ो. दिस वुड बी नियरली स्टूपिड थिंग टू से. बट इफ द आंसर्स आर रियली a step away from you, like literally you type in the prompt and it gives you the answers, then your learning depends upon the question that you're asking. एग्जाम्पल देता हूं मैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पावर बीआई प्रॉब्लम आती है. आप पावर बीआई प्रॉब्लम को एज इट इज अपलोड करते हो और बोलते हो सॉल्व करके लाओ और मैं हाथ बांध के बैठ जाऊंगा. दिस इज वन. या आपकी एबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर चीज समझने की कोशिश करते हो. I'll take one of the examples that you quoted, which is, are you developing reasoning ability on the data using ChatGPT or not? To give you an example, अगर आपके पास डेटा है और डेटा में कुछ एम्बिगुअस है, लेकिन आपका दिमाग अभी सोच नहीं पा रहा है कि ये रो तो एक होनी चाहिए थी, वहां यहाँ पे 2 रोज आ रही है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लो कोई प्रोडक्ट बिका और कोई प्रोडक्ट रिफंड हुआ, तो रिफंड के केस में 2 रोज आ रही है, लेकिन रिफंड की तो एक ही रो आनी चाहिए थी. तो आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये ना समझना आपकी इलिटरेसी नहीं, बट ये दिखाता है कि आपने उस एनवायरनमेंट या उस सेटिंग में काम नहीं किया है. आपके पास वो रियल लाइफ सिचुएशन आपके दिमाग में नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये 2 रोज क्यों आ रही है डेटा की. अगर आप ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछोगे कि कुड यू थिंक ऑफ सिनारियोज
where the refund could be split in 2 rows of data instead of 1, what could be those practical scenarios in real life? What ChatGPT is going to give you is an answer predicting scenarios जहां पे रिफंड के ट्रांजैक्शन 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में हुए, यानी कि आपने Amazon से 10 किताब मंगाई, पहले ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 ही रिफंड करी तो 1 रो बन गई, और दूसरे ट्रांजैक्शन में 5 और किताब रिफंड करी तो 3 रोज और बन गई, 2 रोज और बन गई. Now you have a practical understanding of why there are 2 rows of data. You haven't solved the problem yet, Right. but you have reasoned your way out to a probable real-time solution. And if you do that enough, based on the LLMs, your answers are going to be faster, but you're not technically asking ChatGPT कि कर दो और मैं बस आराम से बैठूंगा और मैं मुफ्त की सैलरी खाऊंगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट करने के लिए रखे और ChatGPT आपको पूरा आंसर दे देता है, तो then your job is at a major risk, because the day is not far when the models become super sophisticated that people don't even need people to prompt. मतलब वो as it is system बन जाएगा ऐसा कि बस वो data circulate होगा and then all the redundant people are out of the system. So how are you using these tools is something which is very important. Are you using it to explore, to reason, to find out what's happening, or are you exploring it for ready-made answers? Right. Yeah. Like आंसर आया, कोड आया, आपने कोड को टेस्ट किया, कोड चला नहीं चला, आर यू कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग इट कि ये यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, आपने ऐसे. हाँ, आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि चैट जीपीटी एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, वो सिर्फ वर्ड्स को प्लेस करता है वन आफ्टर द अदर. तो कभी कभार and a lot of times you're going to be stuck in a cyclical loop of doing the same answer, giving the same answer, and then going back and forth over and over again. And that's when you have to use your brain to step out of that and go take a look at another resource or read a book or read some documentation and then point ChatGPT into the right direction. So ये सब चीजें हैं. So how do you use these tools is way more important than just trying to derive out answers. You can genuinely become very, very intelligent if you use them right. Yeah. And you can genuinely also become pretty stupid and pretty dumb if you use them in the wrong way. I asked this question because ये एक pattern दिख रहा है, which is scary pattern. Now typically what happens that I have noticed is कोई भी technology जो आपकी life easy बनाती है, आप somehow slave to that technology हो ही जाते हो, right? Yes, so, absolutely. Calculator है तो आज के ज़माने में it's not expected for you to do mental maths. But Yeah. at the same time, it is not expected that you are dumb to not even do basic maths. इसीलिए आज भी स्कूल में हमारे बच्चे, I have a 9-year-old son. He's Yeah. been taught maths. It's calculator तो कब से है, right? What is the fear is whenever there is a path-breaking technology that comes in that makes humans generally want to refer. हम सब लोग अपना एफर्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं एंड आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. लर्निंग एक ऐसी चीज है, अगर आप लर्निंग को एफर्ट लेके सिर्फ एफर्ट मिनिमाइजेशन करेंगे तो आप, जैसे आपने कहा, लर्निंग इज वेरी वेरी हार्ड. तो यू आर नॉट लर्निंग. It is meant to be hard. Yes, it is meant to be hard. And only hard things will then stay with you, right? It's almost like saying you want to build a body, then you have to work hard for the muscle to grow up, and same goes for your gray muscles also, which is your brain is a muscle. और इनफैक्ट आप एक मीनिंगफुल एडवांटेज इन योर करियर क्रिएट कर भी नहीं सकते unless you have worked hard for it, and the distance is not easy for masses to travel. So for example, अगर आपने कोई स्किल सीखी है बहुत मेहनत से करके, when you learn something really really hard, now this could be anything, communication skills, your ability to write well, your ability to speak well, your ability to reason well, articulation, all of that. क्योंकि ये कितना बड़ा gap create कर देता है between the masses and you, that you are obviously preferred option for a lot of institutions. Using your skill, they can present themselves better and they can actually give you more money as well. So learning is not supposed to be easy. I don't think it is meant to be easy. It is hard, and the hard actually pays you well. Yeah. So यहाँ पर मैं as a business profession, as someone who works with a lot of team, मैं एक चीज audience को, viewership को, young viewership को ये at least word of caution दूंगा. As you said, use GPT, that's no problem, but don't replace it with your intelligence, and don't even get egoistically fooled that just because you are able to prompt GPT better, you know better. That's also a foolishness. And that's a massive foolishness. So Goodly Insights के interviews easy नहीं है. For people to clear, they have to solve very hard interviews, by the way, if you want to work with us.
And not only you will have to solve, you will have to then stand by your solution in front of us, in front of my team Yes. member. Because that's what is expected when you build a solution. It should stand in front of the client to pass on. Then it should stand the test of time so that it doesn't fail. Even if it fails, then you should be in a better position to refix it. And if you are dependent on some other tool rather than what you know, what you have built, you are Yeah, you're incorrect. ready for a root shock. Unfortunately, लोग जिस तरह से interviews के लिए prepare कर रहे हैं, it's very pitiful to see that what is the calculate function, या what is an inactive relationship, या filter function कैसे काम करता है, difference between sum and sum x. These are purely theoretical questions, and just to let everybody know that we ask zero of these questions, like none of these questions. Yeah. So we are not going to expect you to memorize 15 functions और वो 15 के अलावा हमने पूछ लिया तो आपका reject हो जाएगा. That's not what we expect out of you. In fact, we give you a case study to solve, and we encourage you to use ChatGPT if you want to use it. We don't mind, but then once you come, we will question you based on your choices. What choices did you make? Why did you make these choices? Why did you not think in this terms? Or will this be scalable as a solution? Or is this even valuable to calculate? Things like that. Things that truly require your particular autonomy and reasoning while you were actually making the model, and not just like dumping something into ChatGPT और जो उसने कहा आपने करके दे दिया. In fact, अगर आप हमारे questions, हमारे case studies ChatGPT में try भी करोगे, directly input करना and output करना, you're going to fail massively. So yeah. Not that people haven't tried, and people have done massive. I mean, they put a lot of effort in doing this. But eventually you will realize that there's too much effort that has gone, and probably doing it your own way would have saved you time. Plus, it's not scalable. But the point, meat is not that. The point is, आप interview crack कर भी लें किसी company के साथ, बट जब आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे तब आप कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज वेयर द रबर मीट्स द रोड, एंड वहां पर बर्नआउट हो जाता है. You may get a reward of getting hired, but then what about daily performance? What about... Yeah, you will be fired as fast as you were hired. As fast as. So I think what I wanted to say to all the audience is, and many of you must be preparing up इंटरव्यूज दे रहे होंगे. अगर आप इंटरव्यूज को सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हैं, एंड आप अज्यूम कर रहे हैं कि इससे जॉब मिल जाएगी, मिल सकती है. बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, मिल सकती है. बट क्या ये आपको रियली हेल्प करेगा आपके जॉब पे एक्सेल करने के लिए? शायद नहीं. आप बस अपना प्रॉब्लम आज की बजाय दूसरे दिन पे डाल रहे हैं. बेस्ट इज अभी टाइम है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें वो टूल या वो स्किल्स, और ये जो 4 स्तंभ हमने बोले हैं, क्योंकि वो ओवरनाइट नहीं हो सकती. इसके लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना होता है ताकि आप कर पाए. कभी इन्वायरमेंट एक्सपोज करती है, कभी सिनेरियोज एक्सपोज करती है, कभी आप कहीं से सीखते हैं. तो ये मेरा ह्यूज रिक्वेस्ट रहेगा टू मोस्ट कैंडिडेट्स दैट आर देयर आउटसाइड लुकिंग फॉर information. Sure. Excellent. Thanks a lot, Saurabh. It was a very insightful conversation that I had with you. हम लोग जितने मर्जी videos बना लें, but we expect to reach a lot of people. Give real stuff. I believe there are a lot of misrepresentation of what the technology can or cannot do. Somehow just to make things simple, but things are not simple. Companies are not sitting out there to just pay money for free. मतलब आप उनके लिए प्रॉम्प्ट लिखो, आंसर आए, चिपकाया और आपको पैसे मिल गए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए. कंपनीज आर नॉट स्टूपिड लाइक दैट. मैनेजर्स आर नॉट स्टूपिड लाइक दैट. सो दे एक्चुअली वांट यू टू सॉल्व सम रियली चैलेंजिंग, रियली हार्ड प्रॉब्लम्स जो उनके खुद के एम्प्लॉय सॉल्व नहीं कर पा रहे. एंड फॉर दैट यू नीड टू बिल्ड सम रियली सॉलिड स्किल्स. सो थैंक्स अ लॉट सौरभ. योर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू मी वाज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल. एंड आई आल्सो बिलीव कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगा. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो हम इन द कमेंट्स फॉलो ऑन क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, तो वी बी वेरी ग्लैड टू डू दैट. एंड दैट्स बीन इट. थैंक्स सर. थैंक यू चांदी. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू.